থাকাই মুশকিল। আসাদুল্লাহটা একটু ভালো হয়েছে, আসাদুল্লাহটা একটু ভালো হয়েছে পাগড়ি, তাছাড়া আর কালাম এই গাজীপাড়ায় কি সুন্দর ফুল ফুটেছে, ক্যামেরা বন্ধ, ক্যামেরা তোরা কে দেখবি আয়, তোরা কে দেখবি আয়, কি সুন্দর ফুল ফুটেছে এই গাজীপাড়ায়। আর এই মাদ্রাসার কমিটি গোজারা দেখা শোনা করেন গোথারা। আর এই মাদ্রাসার কমিটি গোজারা দেখা শোনা যথেষ্ট ব্যবস্থাপনা করে তাদেরকে সম্মান জানানো হচ্ছে, বিদায় জানানো হচ্ছে। আমরা জানি বিরহের বেদনা খুবই ব্যথিত হয় এবং কষ্ট দেয়। এই ছাত্রগুলো এখানে ছিল, আমাদের ছিল, আমরা তাদেরকে গাইডের মতো দেখতাম, কিন্তু আজ আমাদের কাছ থেকে চলে যাবে। আমাদের সন্তান যদি একটা আমাদের কাছ থেকে চলে যায়, আমাদের কলিজা যেমন আবেদন হলো, সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা জামিয়ার পক্ষ থেকে, বিশেষ কোনো ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমরা এক এক করে তাদের পুরস্কার তুলে দেবো। সর্বপ্রথম আমরা জামিয়ার পক্ষ থেকে যারা হাফেজ হচ্ছেন তাদেরকে আল কোরআন কারীম গিফট করা হবে, এবং যারা মওলানা ফারেক হচ্ছেন তাদেরকে সহিহ বুখারী। 18 জন ছাত্র কিভাবে এখানে কঠোর পরিশ্রম করে আল কোরআন মুখস্থ করে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছে। তার সাথে সাথে के दिन ये दो सूरतें क़यामत के दिन कैसे आएगी और अल्लाह से झगड़ेगी। झगड़ा की बात है, ये नहीं कि बातचीत करेगी। ये सूरे बकरा और सूरे आल इमरान पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला से झगड़ेगी। आएगी किस तरह? गमामतन, दो बादलों की तरह। देख रहे हैं बादल, जो वो पानी जो बादल उड़ते हुए आ रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सूरे बकरा एक तरफ और सूरे आल इमरान एक तरफ, दो सूरतें बादलों की तरह उड़ते हुए आएगी, या ये दो सूरतें दो साइबान की तरह आएगी, या ये दो सूरतें दो चिड़ियों की तरह, परिंदों की टोलियों की तरह आएगी और पढ़ने वालों की तरफ से अल्लाह से झगड़ेगी। आगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सूरे बकरा अगर कोई पढ़ता है तो उसके लिए बरकत है। फ़इन अख़ज़हा बरकतुन व तरकहा हसरतुन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सूरे बकरा का पढ़ना उसके लिए बरकत है और सूरे बकरा का छोड़ देना उसके लिए नुकसान है। क्या फायदा? हदीस तिरमिज़ी की है, रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तजअलू बुयूतकुम मक़ाबिरा, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। क्यों? घर में कुरान पढ़ा करो। जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा ला यदखुलुहु शैतान, उस घर में शैतान दाखिल नहीं होगा। आज हम लोग बहुत से परेशान हैं, मुसलमान होकर के आपके घर में बहुत आपकी बेईमानी की वजह से है। आज मुसलमान है, आपके और हमारे घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता। कितने लोग हैं कुरान पढ़ते हैं आप लोग? कितने को आपने कुरान सिखाया? वजह यह है कि जिस घर में कुरान नहीं उस घर में शैतान आएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में शैतान दाखिल ना हो तो इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ा करो। आज मुसलमान है उसका कि मैं नाम के आगे हाजी लिखूंगा अलहाज फला, उसका हज कबूल नहीं।
ایک آدمی کا ذکر فرماتے ہیں، ثم ذکر الرجل، ایک آدمی یطیل السفر، کریں کہ ایک آدمی لمبا سفر کر کے حج کے لیے آتا ہے یا جاتا ہے، اشعث، کریں کہ بندہ مکہ یا مدینے پہنچ کر کے یمد یدیہ الی السماء، دو ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کر کے وہ کہتا ہے یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو حج کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کے لیے جاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے رب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مطعمہ حرام، جو کھایا ہے وہ حرام، وملبسہ حرام، جو وہ پہنا ہے حرام، ومشربہ حرام، جو پیا ہے حرام، وغذی بالحرام، اس کی پرورش حرام، حرام کھایا، حرام پیا، حرام کھایا، حرام پیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، بتاؤ کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ تو حرام پیسہ کھا کر کے، حرام پیسے کی کپڑا پہن کر کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو عبادت خالص اللہ کے لیے، دکھاوا نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، ریا نہ ہو، حرام کھا پی کر کے نہ ہو، تو عبادت قبول ہوگی، نمبر ایک۔ نمبر دو، عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی ہے۔ اگر آپ اور ہم منمانی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول نے جس طریقے سے جو عبادت کیے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں عبادت کرنی ہے، تو عبادت قبول ہوگی، نہیں تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول نے جس طرح نماز پڑھی ہے اس طرح اگر آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز قبول ہوگی۔ رکوع جس طرح اللہ کے رسول نے کیا، سجدہ جس طرح اللہ کے رسول نے کیا، جہاں جو دعائیں پڑھی ٹھیک اسی طرح ہمیں پڑھنی ہے۔ حج کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے لو۔ تو عبادت کریں گے اللہ کے لیے اور طریقہ ہوگا رسول کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر عبادت کرتے ہیں تو عبادت قبول ہوگی، نہیں تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ تیسری جو میں نے پہلے بول دیا کہ حرام کھا پی کر کے عبادت کسی کی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جس وقت آپ دعا کریں گے اس وقت سر کا ٹوپی، بدن میں کرتا اور نیچے چڈی اور پاجامہ اور موزہ اور پیٹ کے اندر پانی اور غذا حلال ہو تو دعا قبول ہوگی، نہیں تو دعا قبول نہیں ہوگی، یاد رکھیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں عبادت کس کی قبول ہوتی ہے، جو عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے، شہرت دکھاوا نہیں ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے اور حلال کھا پی کر کے عبادت کرے تو اس کی عبادت قبول ہوگی، نہیں تو عبادت قبول نہیں ہوگی۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتیں یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ میری طبیعت تو نہیں چاہ رہی تھی لیکن اب لگ رہا ہے کہ ساتھ نہیں دے رہی ہے، اور آپ سے ایک وعدہ ہے انشاءاللہ کہ پھر مسجد میں ایک پروگرام کا آپ لوگ رکھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہو ایک پروگرام وہاں انشاءاللہ میں کر لوں گا۔ آج طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے میں زیادہ لگ رہا ہے کہ اب بول نہیں پا رہا ہوں، لگ رہا ہے کہ سانس اندر سے اجازت نہیں دے پا رہی ہے اور سانس پھولنے لگا ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر آپ سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے یہاں آ کر کے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں علماء کے بیچ، اور ہمارے استاد محترم
शेख इस्माइल मदनी से मुलाकात हुई, शेख अब्दुर्रहमान से मुलाकात हुई, शेख उबैदुल्लाह से मुलाकात हुई, शेख नुसरुल्लाह वारी से मुलाकात हुई, और इससे पहले भी आया था, लेकिन इतने अच्छे ताल्लुकात आपसे हमारे नहीं हुए थे। फिर आप जो बड़े बड़े ज़मींदारान हैं, मज़ीद ये ताल्लुकात और ये हमें मालूमात मिले कि माशाअल्लाह आप लोग ये मदरसा चलाते हैं और अच्छे खासे आप लोग बिजनेसमैन तिजारत कर रहे हैं और पैसे वाले लोग हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप और जो भी तिजारत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबकी तिजारत में बरकत अता फरमाए। आप जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। दूसरी बात जो मुझे याद आई कि आप अपने लिए कुछ नेक अमल करके जाएं। नेक अमल, मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं करता। अभी मर गए, शायद या 2 दिन या 3 दिन उनके रिश्तेदार उनके लिए फातिहा करेंगे या दरूद पढ़ेंगे या सदका खैरात करेंगे, उसके बाद आदमी को भूल जाता है। आप अपनी कब्र की तैयारी खुद करके जाएं। कब्र की तैयारी में कुरान खुद पढ़ के जाएं। इस उम्र में क्या करें, सुबह बैठे कुरान पढ़ें, शाम में बैठे कुरान पढ़ें। कोशिश ये कीजिएगा कि कम से कम जब सोने लगे तो कुरान पढ़ के सोए। कोशिश ये कीजिएगा जब आप सुबह उठे तो कम से कम 2 आयत कुरान ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, ठीक है। जब आपको मौका मिले तो कुरान पढ़ते रहिए, दुआ करते रहिए। मौत की तैयारी हमेशा कीजिए। मौत कभी भी आ सकती है। मौत कह के आती है, लेकिन हम लोग उसको डिनाई कर देते हैं। अभी जो इंतकाल किए वो मरा, आपको खबर दे के गया कि वो तो गया, अब आपकी बारी है, आप तैयारी करो। घर में 5 भाई है, 1 मरता है, 4 को खबर दे के जाता है। 5 भाई में 1 मरता है, 4 को खबर देता है। अब तुम 4 तैयार रहो, 4 अपने अमाल ठीक करो। गांव में 1 मरता है, पूरे गांव को वार्निंग है कि अब तुम लोग तैयार रहो, अब तुम्हारी बारी है। तो मौत को हमेशा याद करते रहिए। मौत को हमेशा याद करते रहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंसारी सहाबी आया और सवाल किया 2। पहला सवाल, या रसूल अल्लाह, मुसलमानों में सबसे अच्छा कौन? सवाल, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों में सबसे अच्छा कौन? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसनुहुम अखलाक़ा, जिसका अखलाक अच्छा। अभी जो मरने वाला मर गया, अच्छा था तो ज़रूर आप कहेंगे अच्छा, मरने वाला बुरा था तो आप ज़रूर कह दिए हैं बुरा आदमी था, बेनमाजी था, गुनहगार था, सूदखोर था। अल्लाह के यहाँ भी गुनहगार है। अहसनुहुम अखलाक़ा, जिसके किरदार अच्छे हैं, अल्लाह के नज़दीक वो अच्छा है। दूसरा सवाल, या रसूल अल्लाह, सबसे अक्लमंद कौन है? होशियार, अक्लमंद। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सरुहुम लिल मौत ज़िक्रा, जो मौत को याद करता है हमेशा, ए अल्लाह जब मरूं तो कलमा नसीब फरमा, ए अल्लाह जब मरूं तो मुझे मोमिन की मौत देना। मौत को याद कर रहा है, हमेशा दुआ पढ़ रहा है, ज़िक्र अज़कार कर रहा है, किसी झूठ नहीं बोलता है, किसी की बेईमानी नहीं करता है, कब्र की ज़ियारत करता है। अच्छा बताइए, आज हम लोग जो मौत से गाफिल हो गए हैं, आप लोग सीने में हाथ दे के कह सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर कोई भी कब्रिस्तान की ज़ियारत किया आप लोग? हफ्ते के अंदर कोई गए हैं कब्रिस्तान? 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में 1 आदमी गए। दूसरा हफ्ता, आज नहीं, पिछले 1 हफ्ता। आज तो दफनाने गए हैं, मजबूरी थी आपकी, आज की बात नहीं कर रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ता कोई कब्रिस्तान गए हैं मिट्टी देने, घूमने, दुआ करने, अच्छी बात। उसके पहले हफ्ता कब्र की ज़ियारत कीजिए। आप कितने पैसे वाले हैं, आपसे भी पैसे वाले वहाँ सो रहे हैं, याद कीजिए उसको। वो लेके कुछ नहीं गया, वो खाली हाथ चला गया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें छोड़ के चला गया, बहुत पैसे वाला था, छोड़ के चला गया।
آپ بھی چھوڑ کے چلے جائیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا غلام کا نام تھا ہانی۔ حضرت ہانی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جنت اور جہنم کا ذکر کر کے نہیں روتے، لیکن قبر کے پاس بیٹھ جاتے اور اتنے روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی، بھیگ جاتی۔ ہانی نے پوچھا امیر المومنین عثمان غنی، آپ جنت اور جہنم کا ذکر سے اتنے نہیں روتے جتنے آپ قبر کو یاد کر کے روتے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ہانی، میں نے رسول سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے۔ فإن نجا منه احد، اگر قبر سے کسی کو نجات مل گئی تو بعد میں آسانیاں ہیں، اگر قبر میں پھنس گیا تو پوری لائف اس کی برباد ہو گئی، اب کہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ قبر کی تیاری کیجیے۔ قبر کی تیاری کیا کیا آپ نے؟ نماز پڑھیے، بے نمازی قیامت کے دن پاس نہیں ہو سکتا۔ حدیث ابو داؤد کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، قیامت کا ہر انسان سے پہلا سوال، تم نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی؟ یہ پہلا سوال آپ سے، پہلا سوال آپ سے، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ہے؟ اگر نماز درست، باقی کوئی عمل اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا، کچھ بھی نہیں پوچھے گا۔ فدخل الجنہ، اگر نماز ٹھیک نہیں ہے کوئی عمل کام نہیں آئے گا، جہنم، کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ 50 حج بھی کیا تو پہلے جنت نہیں جا سکتا ہے، 100 عمرہ بھی کیا تو جنت نہیں جا سکتا ہے۔ پہلا سوال قیامت کا نماز، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کا پہلا سوال نماز صحیح، باقی اعمال صحیح۔ نماز صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل کام نہیں آئے گا۔ پہلا سوال قیامت کا نماز۔ زندگی کا 5 سوال، حدیث ترمذی، حدیث نمبر 2416، حدیث نمبر 2416، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان سے 5 سوال۔ نمبر 1، عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کیسے گزاری، کہاں گزاری؟ بے نمازی پاس نہیں ہوگا۔ وعن شبابہ، جوانی کو کس چیز میں گزاری ہے تم نے؟ نمبر 3، ومالہ من این اکتسبہ، مال کیسے کمایا؟ حرام طریقے سے، حلال طریقے سے؟ جواب دینا ہوگا قیامت کے دن، کیسے کمایا تو نے مال؟ ومالہ من این اکتسبہ، کیسے کمایا تھا؟ جھوٹ بول کے، سچ بول کے، سود کھوری کر کے، یا حلال طریقے سے، دھوکہ دے کے، یا بے ایمانی کر کے، یا سچ بول کر کے؟ جواب دینا ہوگا۔ آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے کہ مال کیسے کمایا، سود کے کاروبار سے، جھوٹ بول کے، بے ایمانی کر کے، زمین دبا کر کے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا اور جواب دینا ہوگا، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کیسے کمایا؟ اچھا، آج مال اگر غلط راستے میں خرچ کرتے ہیں تو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، خرچ کہاں کیا؟ قیامت کا سوال ہے، مال کیسے کمایا، کہاں سے کمایا، حلال یا حرام؟ قیامت کا دن کا سوال ہے، جواب آپ کو دینا ہوگا قیامت کے دن۔ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، مال خرچ کہاں کیا تھا؟ معاف کیجئے گا، آج ایک بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ آج مسلمان غلط طریقے سے پیسہ ہے تو غلط طریقے سے خرچ کر رہا۔ شادی بیاہ میں 10 لاکھ، شادی بیاہ میں 20 لاکھ، اسراف جائز نہیں ہے، معاف کیجئے گا۔ پیسہ اللہ آپ کو دیا ہے تو یہ شادی بیاہ میں 10 لاکھ ایک بھی پیسہ کام نہیں آئے گا قیامت کے دن۔ جواب دینا ہوگا، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، خرچ کہاں کیا تھا؟ مدرسے میں کیا ہے تو نجات، شادی میں 10 لاکھ، جواب دینا ہوگا، پھنس جائے گا آدمی۔ جہیز لیا، پھنس جائے گا آدمی۔ جہیز لینا اسلام میں حرام، جہیز کا پیسہ سے حج کرے گا حرام،
जहीज का पैसा से उम्रा करेगा जायज़ नहीं है, जहीज का पैसा खा पी करके नमाज जायज़ नहीं। आज मुसलमानों की बीमारी आ गई। ये तो हिंदुओं का अमल था, माफ़ कीजिए, मैंने पहले कहा कि माफ़ कर दीजिएगा, हिंदुओं का अमल था जहीज लेना, आज मुसलमान करते हैं। कल तलक बाराती का 200-300 का इस्लाम में नहीं है, नहीं, बाराती 200-300 इस्लाम में नहीं है। जहीज लेना ये भी इस्लाम में नहीं है। लड़कियों पर जुल्म करके ले रहे। अच्छा, लड़का का दाम लगता है, हाँ कितना लोगे, 5 लाख, 3 लाख में नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारा बेटा जवान है, 5 लाख से कम में बात नहीं होगी, लड़की पसंद है, बात खत्म, पैसा होना चाहिए 5 लाख, जायज़ नहीं। आप अगर मुसलमान हैं तो जहीज क्यों लेंगे? अल्लाह ताला ने आपको नियामत हाथ पर नहीं दिया है, दिया, इसलिए ये काम नहीं कीजिए। अल्लाह ताला आपको हाथ पैर सही सालिम बनाया है, तो आप जहीज ना लें, ये इस्लाम का नहीं है। ये तो हिंदुओं में हम देखते थे, सुनते थे, लेकिन आज मुसलमान ये काम कर रहे हैं। बहरहाल ये सब सही नहीं है। तो क़यामत के दिन ये 5 सवाल होगा। ज़िंदगी कैसे गुजारी, जवानी कहाँ गुजारी, किस काम में गुजारी, माल कहाँ से कमाया, माल खर्च कहाँ किया, और अपने इल्म पर कितना अमल किया, ये क़यामत का सवाल है। नियामत के ताल्लुक से 2 सवाल हदीस तिरमिज़ी की है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नियामत जितनी भी हम खा पी रहे हैं, उन नियामतों में सिर्फ 2 का सवाल होगा। सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जितनी भी नियामत है सब के बारे में सवाल होगा। हदीस में 2 हैं। अय्युक़ाल लह, कहा जाएगा, अलम नुसिह लका जिस्मक व नुर्वीका मिनल माइल बारिद, मैं तुम्हें अच्छी सेहत नहीं दी थी, हाथ पैर है, मस्जिद कितनी बार जा रहे हैं, आँख है, मस्जिद कितनी बार जा रहे हैं, दिमाग है, पागल तो नहीं बनाए, मस्जिद कितनी बार जा रहे हैं। अलम नुसिह लका जिस्मक, क्या मैं तुम्हें अच्छी सेहत नहीं दी थी, मैं तुम्हें ठंडा पानी नहीं पिलाया? ये क़यामत का सवाल है। इबादत का, नमाज, नियामत का 2, ज़िंदगी के 5, जैसे मैंने जिक्र किया। इसलिए आप आखिरत की तैयारी करें, कब्र की तैयारी करें। कब्र अंधेरा घर है, कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। क़यामत में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी से कुछ नेक अमल करके जाइए। जैसे मैं कह रहा था, कुरान पढ़ के जाइए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करके जाइए, बच्चों को नमाजी बना के मरिए। अगर बच्चों को बेनमाजी है और आप मर जाते हैं तो गुनाह कब्र में आपको होता रहेगा। बच्चे नमाजी हैं, आप अगर मर जाते हैं तो कब्र में नेकी आपको मिलेगी। हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलास, इंसान मर जाता है तो उसका नेकी का दरवाज़ा बंद है, लेकिन 3 नेकी है मौत के बाद भी पहुँचती है। एक सदक़ा जारिया, आप अपनी ज़िंदगी में करके जाइए। माल है, खुद अपने हाथ से बना के मस्जिद बना के जाइए, खुद अपने हाथ से मदरसा बना के जाइए, खुद अपने हाथ से बुखारी खरीद के जाइए, खुद अपने हाथ से गरीबों को दे के जाइए। आपके मरने के बाद वो पैसा और माल तो आपके भाई तकसीम कर लेंगे, आपका दुआ के लिए भी किसी का हाथ नहीं उठेगा। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में नेक अमल करके जाइए, सदका करके जाइए, गरीबों को दे के जाइए। गरीब बेटी है उसकी शादी कराइए, कुरान पढ़िए, तस्बीह कीजिए, दुआ कीजिए, ये सब आपके मौत के बाद काम आएंगे। तो आप अपने लिए अच्छा अमल करके जाइए, बच्चों को नेक बना के, सौले बना के, बच्चों को नमाजी बना के अगर नहीं मरते हैं तो गुनाहगार होकर मरेंगे आप। बच्चों को नमाजी बना के मरते हैं तो आप नेक होकर के मरेंगे। बच्चे नमाज पढ़ेंगे, नेकी आपको मिलती रहेगी। क़यामत के दिन एक जन्नती, जन्नत के दर्जात बुलंद हो जाएंगे। वो आदमी पूछेगा, ये अल्लाह महादनी, ये कैसे हुआ, मैं तो नीचे था, मेरे दर्जात बुलंद हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, दुनिया में तेरी औलाद की दुआ जो तेरे दर्जात को बुलंद कर दिया। तो नेक औलाद अगर माँ बाप के लिए दुआ करे तो माँ बाप अगर जन्नती है तो उसके दर्जात को बुलंद कर देते हैं। अगर माँ बाप के कुछ गुनाह भी है तो अल्लाह उनके गुनाहों को मिटा देता है। तो नेक औलाद बना के, नेक औलाद छोड़ के मरिए। अपने कब्र के तैयारी आप कीजिए, आखिरत की तैयारी आप कीजिए, तैयारी करके मरिए।
कब्र अंधेरा घर है, कोई काम आने वाला नहीं। यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बातें अगले के लिए इंशाअल्लाह मैं छोड़ देता हूँ। आप लोग भी दोबारा फिर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बड़े अच्छे अंदाज में माशाअल्लाह सुकून से, मैं इतना नहीं सोचा था कि इतने सुकून से आप लोग बैठेंगे। माशाअल्लाह बड़े सुकून से आप लोग बैठे। दिल चाह रहा था कि कुछ और बोले, लेकिन तबीयत साथ नहीं दान देने की वजह से, और मुझे भी बात करके बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अंदर से लग रहा है कि मैं कह नहीं पा रहा हूँ और सांस खुल रही है। फिर इंशाअल्लाह एक प्रोग्राम मस्जिद में आप लोग एक टाइम बना लीजिए, इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। और जो भी बात कही गई हदीस व कुरान की रोशनी में, सबसे पहले अल्लाह मुझे अमल की तौफीक दे, फिर आपको भी उसके अमल की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।